This video is on the numericals for the lesson motion. Since this video is for the class 9 and the numericals start from class 9, so first of all I will tell you how to attempt the numericals. Now in the lesson motion we have seen that there are three equations of motion. V is equal to u plus at, S is equal to ut plus half at, ut plus half at square. और थर्ड इक्वेशन है v square is equal to u square plus 2s. Now these are the three main equations of motion on which the numericals come. So first of all, what should you do whenever a numerical is given to you? You should write the whatever the things are given to us. Then the thing which is to be calculated. जो चीजें दी हुई हैं सबसे पहले हम वहाँ नोट कर लेंगे. फिर सेकंड क्या करेंगे? जो चीजें हमने जो चीजें निकालनी है वो नोट करेंगे. मान लो सपोज हमें कोई क्वेश्चन दिया गया. Question is given to us. This is the first question that a body find the initial velocity of a car. We have to find the initial velocity of a car which is stopped in 10 seconds. जिसको हम क्या कर रहे हैं 10 सेकंड में रोक रहे हैं. Which is stopped in 10 seconds by applying brakes. It is given to us that the retardation of car is 2.5 meter per second square. The retardation of car is 2.5 meter per second square. So first of all, what will you do? First of all, हम क्या करेंगे? जो चीजें हमें दे रखी हैं और जो निकालनी है उसको लिखेंगे. अब क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द इनिशियल वेलोसिटी. अब आपको पता है ये जो तीन इक्वेशंस ऑफ मोशन है इसमें u क्या डिनोट करता है? इनिशियल वेलोसिटी. v क्या डिनोट करता है? फाइनल वेलोसिटी. t क्या होता है? टाइम. a डिनोट करता है एक्सेलरेशन और s डिनोट करता है डिस्प्लेसमेंट. You cannot change the symbols. You have to follow these symbols. Now, first of all, he's saying find the initial velocity. मतलब हमें इनिशियल वेलोसिटी निकालनी है तो हमने u इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क. जो चीज निकालनी है उसमें हमने आगे क्वेश्चन मार्क लिखा. अब आगे क्या जा रहा है? विच इज स्टॉप्ड इन 10 सेकेंड्स. अब आपने क्या किया? कार को 10 सेकेंड्स में रोक दिया. तो टाइम कितना दिया हुआ हमें? 10 सेकेंड्स. so we will write time is equal to 10 seconds. Which is stopped. Now since the car is stopped, जब कोई चीज रुक रही है यानी कि उसकी फाइनल वेलोसिटी जीरो है. और फाइनल वेलोसिटी किससे डिनोट करते हैं? v से. तो v कितना होगा? जीरो. और कैसे आपने रोका गाड़ी को? बाय अप्लाइंग ब्रेक्स. और यू आर गिवन दैट द एक्सेलरेशन ऑफ द कार इज 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. नाउ व्हाट इज रिटार्डेशन? रिटार्डेशन मींस नेगेटिव एक्सेलरेशन. तो a हमें कितना मिलेगा? -2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. So we are given we are given u, t, we have to find the value of u. We are given t, we are given v and a. Now how will you judge which equation you have to use? आप क्या करो? पहले तीन इक्वेशन लिख लो. v is equal to u plus at, s is equal to ut plus half at square और v square is equal to u square plus 2s. आप तीनों इक्वेशन अपने सामने लिख लीजिए. अब आप देखो अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन अप्लाई करूं, v हमें दे रखा है, u हमें निकालना है, a given to us, t given to us. तो we will use this equation. क्योंकि जब हम किसी भी क्वेश्चन को लगा रहे हैं तो हमारे पास ऐसा होना चाहिए कि एक चीज अननोन होनी चाहिए और बाकी चीजें पता होनी चाहिए. तो वो वाले इक्वेशन हम यूज कर देंगे. अब हमारे पास क्या आ जाएगा? हम ये v इक्वल टू u प्लस at वाला इक्वेशन यूज करेंगे.
So what we will get? V is equal to U plus 80. V is 0. U is to be calculated. A कितना हो गया 2.5. टाइम कितना है 10. So 0 is equal 2.5 into 10 कितना हो जाएगा 25. Now if I take 25 to that side, it will become U is equal to 25 मीटर पर सेकेंड. इसका मतलब ये हो गया कि जो बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी है वो कितनी हो गई 25 मीटर पर सेकेंड. सो इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द कार इज 25 meter per second. This was our first question. Now we move on to the question number 2. The question is that a train starting from rest. एक train है वो rest से start करेगी. A train starting from rest. Whenever a body starts from rest, its initial velocity will become how much? 0. So a train starting from rest moves with a uniform acceleration of, say we are given the acceleration is 0.2 meter per second square for 5 minutes. Now the question is that calculate the speed acquired. Calculate the speed acquired and the distance traveled by the body. So as I told you, first of all, we will write the given information and the information which is to be calculated. Now question is that a train is starting from rest. So since train is starting from rest, क्योंकि ट्रेन कहाँ से स्टार्ट हो रही है रेस्ट से स्टार्ट कर रही है तो उसकी यू कितना आ जाएगा 0 मीटर पर सेकेंड. आगे क्वेश्चन में दिया इट इज मूविंग विद अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ हाउ मच 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. तो व्हाट इज द एक्सेलरेशन ए. एक्सेलरेशन इज डिनोटेड बाय ए. तो ये कितना हो गया 0.25 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. नाउ फॉर टाइम फॉर 5 minutes. The time is how much 5 minutes. And always remember we have to follow the SI system. Since we have to follow the SI system, the unit of mass will be kilogram times second and length meter. So we'll have to convert this minute into second. To convert minute into second, we will multiply it by 50, 60. So we will get how much? Time is equal to 300 seconds. Now the question is, these are the three things which are given to us. U that is the initial velocity, A that is the acceleration, and T is the time. You should write the units of every quantity here. This is very important. If you do not write the units, your answer is incomplete. Now, these are the find. We have to find the speed acquired. Speed acquired का मतलब क्या हो? बॉडी में लास्ट में स्पीड हो गई बॉडी. Speed acquired मतलब final velocity that we have to calculate. The second thing is the distance traveled. We have to calculate the distance traveled. When the body is moving in a straight line, do remember जो उसका डिस्टेंस होगा वही डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा. क्योंकि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? मिनिमम डिस्टेंस होता है. और जब बॉडी स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है तो मिनिमम डिस्टेंस और एक्चुअल डिस्टेंस बराबर हो गए. अब हम तीनों इक्वेशन अपने सामने लिख लेते हैं. v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर और वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s. अब तीनों इक्वेशन हमने लिख दिए. अब देखो पहले इक्वेशन पे देखते हैं. हमें u क्या है 0 दिया हुआ है, ए हमें पता है 0.25, टाइम हमें पता है 3 सेकेंड्स. अब इस इक्वेशन में हमारे पास एक ही क्वांटिटी है जो हमें निकालनी है. कौन सी? v. तो हम ये फर्स्ट इक्वेशन की मदद से क्या निकाल सकते हैं? v निकाल सकते हैं. तो अप्लाई द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन. वी विल अप्लाई द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन.
तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या हमारा v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो v हमें निकालना है, u जीरो है, a कितना 0.25, टाइम कितना है 300 सेकेंड्स। सो नाउ 0.25 मल्टीप्लाइड बाय 300, इफ यू मल्टीप्लाइड, जब 0.25 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे दो जीरो हट जाएंगे, तो 25 थ्री जा कितना होता है 75। तो हमारी फाइनल वेलोसिटी कितनी आ गई 75 मीटर पर सेकेंड। अब हमें सेकेंड पार्ट है। अब देखिए हमें u पता था, a पता था, t पता था, अब हमने v भी निकाल लिया। अब हमें क्या निकालना है, s निकालना है। अब हमें सेकेंड इक्वेशन देखो, s हमें निकालना है, u पता है, t पता है, a पता है। तो हम सेकेंड इक्वेशन की मदद से, यूजिंग सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, अगर हम सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज कर लें तो हम s निकाल सकते हैं। तो s कितना हो जाएगा ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब s कितना हो जाएगा, u कितना हमारा जीरो, टाइम कितना था 300। वैसे तो जीरो को किसी भी चीज से मल्टीप्लाई करेंगे जीरो ही आएगा, प्लस हाफ इंटू ए कितना है हमारा, ये हमें क्वेश्चन दिया 0.25, मल्टीप्लाई बाय टाइम, टाइम कितना दिया हुआ हमें क्वेश्चन में 300 सेकेंड्स, तो 300 का स्क्वायर। तो ये चीज तो अब जीरो ही हो जाएगी। तो हाफ इंटू 0.25 इंटू, अब 300 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 और 4 जीरोस, तो 245,000। तो एस कितना हो जाएगा हमारा 0.25 मल्टीप्लाई बाय 45,000। अब 0.25 अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा दो जीरो हट जाएंगे, तो 450 इंटू 25। नो वी कैन मल्टीप्लाई 45 इंटू 25, तो हमारा आंसर आ जाएगा 11250 मीटर। तो ये क्या हो गया हमारा डिस्टेंस ट्रेवल। So we have calculated the final velocity as well as the total distance. Now we move on to another question. Suppose the question is that a train traveling at 20 meter per second, a train traveling at 20 meter per second accelerates for at 0.5 meter per second square or 30 seconds. The question is that how far will it travel? How far will it travel in this time? Again, what we will do, first of all, we will write what quantities are given to us. A train traveling at 20 मीटर पर सेकंड, तो कह रहा है कि ट्रेन 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से ट्रैवल कर रही है। तो ये क्या हो गया इसका इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी हमेशा किससे डिनोट होती है, यू से। आगे क्या कह रहा है, एक्सेलरेट एट, यानी कि एक्सेलरेशन कितना हो गया 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर फॉर टाइम ऑफ 30 सेकंड। टाइम कितना दे रखा है हमें 30 सेकंड। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है, हाउ फार इट विल गो। हाउ फार का मतलब क्या है, कितने दूर तक चली जाएगी, यानी कि हमें क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालना। तो u गिवन है, a गिवन है, t गिवन है, और हमें अब क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालना है। डिस्टेंस निकालना मैंने हमें s निकालना। तो अब हम अगेन तीनों क्वेश्चन अगर आपके सामने लिख रहे हैं, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो देखिए v आपको पता नहीं है, u इज गिवन टू अस, a इज गिवन टू अस, t इज गिवन, बट वी हैव टू फाइंड s। अब s इस वाले इक्वेशन में तो आ ही नहीं रहा है, so we will not use this equation. We will go for the second equation. S is equal to ut plus half at square. U हमें पता है, S निकालना है, तो S इस इक्वेशन में है, U हमें दे रखा है, T हमें पता है, A पता है, तो we will use the second equation of motion. तो S कितना हो गया हमारा ut plus half at square.
तो एस कितना हो गया, यू कितना हो गया 20, टी कितना है 30, प्लस हाफ इंटू ए कितना है 0.5, टी कितना है 30। तो एस कितना हो जाएगा हमारा 20 × 30, 20 × 30 कितना होता है 600, प्लस हाफ इंटू 0.5, और ये कितना हो गया 30 × 30, 215 does how much 30, so s will become equal to how much 600 plus no 30 into 45, 30 into 45 is how much 450, now 0.5 into 450, that will become 225, so s हो जाएगा हमारा 825 मीटर। so we have got the distance, तो distance कितना हो गया 825 मीटर, यानी कि जो ये ट्रेन है ये कितना ट्रेवल कर रही है 825 मीटर ट्रेवल। Another question. Suppose the question is, what will be the final velocity and displacement of a body if it starts from rest? एक बॉडी है वो रेस्ट से स्टार्ट कर रही है, अब हमें उसका क्या निकालना है, फाइनल वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट निकालना है। If the acceleration of the body is 10 meter per second square and this change in acceleration takes place during 5 seconds, तो वही चीज हम करेंगे। सबसे पहले जो भी रिक्वायर्ड गिवन इंफॉर्मेशन है उसको लिखेंगे और जो निकालना है वो लिखेंगे। अब क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द फाइनल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी हमेशा किससे डिनोट करते हैं v से, तो हमने लिखा v इज क्वेश्चन मार्क, फिर डिस्प्लेसमेंट निकालना है, तो s इज आल्सो क्वेश्चन मार्क। इफ द बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, अब u 0 हो गया, y 0, सिंस बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, since the body is starting from rest, so u will become equal to how much 0. If the acceleration of the body is given to you, acceleration कितना देखा, acceleration हम a से डिनोट करते हैं 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब ये जो u v s सब स्टैंडर्ड सिंबल्स हैं, इसलिए अगर आप केवल यहाँ पे u लिख दे रहे हो, u इतना है, तो ये अंडरस्टूड है हमारे लिए कि u इनिशियल वेलोसिटी है, v फाइनल वेलोसिटी है। आपको बार बार एक्सेलरेशन लिखने की जरूरत नहीं है कि एक्सेलरेशन इतना है, a इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और ये कहा गया कि जो चेंज है एक्सेलरेशन में कितने टाइम के दौरान हो रहा है 5 सेकंड्स, यानी कि t कितना हो गया हमारा 5 सेकंड्स। एंड सेकेंडली यूनिट हर चीज में आपको लिखनी चाहिए। अब हम एक क्या करेंगे, तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन अपने सामने लिख लीजिए, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s। अब आप देखिए हमें v निकालना है, u गिवन है, a गिवन है, t गिवन, तो हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से v निकाल सकते हैं। तो फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई करेंगे तो उससे हमारा v निकल जाएगा। v का फॉर्मूला क्या है, u प्लस ए टी, तो v कितना होगा, u कितना दे रखा है हम लोग को 0, a कितना दे रखा है 10, टाइम कितना दे रखा है 5, तो 0 प्लस 50, तो हमारा हो गया 50 मीटर पर सेकंड। अब अगर हमें s निकालना है तो अब आप सेकंड इक्वेशन एक एक करके चेक करेंगे। देखिए हमें s निकालना है, u पता है, t पता है, a पता है, तो क्योंकि एक ही चीज निकालनी है हमें, बाकी सब चीजें पता है, तो हम क्या करेंगे सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई करेंगे। अप्लाई सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। अब सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन से s कितना है, ut प्लस हाफ ए टी, एस कितना हो गया, u तो 0 है, अब टाइम कुछ भी है 5 सेकंड में, वो तो 0 ही जाएगा,
हाफ इंटू ये कितना दिया हमें क्वेश्चन में 10, टाइम कितना दिया है 5, कैसे कितना हो गया, ये तो 0 हो जाएगा। हाफ इंटू एक्सलेशन कितना है 10 इंटू टाइम है 5, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, तो 5 कैंसिल हो गया, तो ऐसा हो गया 125 मीटर। तो आई एम अगेन रिपीटिंग, जब आपको न्यूमेरिकल्स करने होते हैं सबसे पहले क्या करेंगे, जो जो चीजें गिवन है वो आप लिखोगे, जो चीज आपको निकालनी है वो भी बताएंगे कि ये निकालनी है। फिर तीनों ही क्वेश्चन ऑफ मोशन आप अपने सामने रख लीजिए ताकि आपको आसानी पड़े। आपके किसी भी क्वेश्चन को जब अप्लाई करना है आपको, जैसे v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी में कितने वेरिएबल हैं, 4 वेरिएबल, तो आपको 3 वेरिएबल क्वेश्चन से मिलने चाहिए और एक निकालने का होना चाहिए, तो आप उस पर्टिकुलर इक्वेशन को लगाओगे। और जब भी आप आंसर निकालो तो आंसर में यूनिट लिखना आपको बहुत जरूरी है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू राइट द यूनिट। फिजिक्स में आपको यूनिट लिखना बहुत जरूरी है, बिना यूनिट के उसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं रहेगा।